ब्लिस क्लब की फाउंडर और सीईओ मीनू मार्गरेट मेरा साथ दे रही हैं। एचआरएक्स की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर पल्लवी बर्मन और साथ ही इस सेगमेंट में निवेश करने वाली वेंचर कैपिटल फर्म एलिवेशन कैपिटल के वाइस प्रेसिडेंट चिराग चड्ढा भी मेरे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। वेलकम टू द शो। एक बहुत ही दिलचस्प जर्नी इनफैक्ट ब्लिस क्लब और एचआरएक्स की रही है एंड आई एम श्योर पीपल हैव मेड द मोस्ट, स्पेशली पैंडेमिक के दौरान जहां पर हम लोग ऑफिस वेयर को छोड़कर सब एथलीजर में शिफ्ट हो गए थे। शायद वहां से एक फिलिप मिला आप लोगों के ब्रांड्स को। लेकिन मैं सबसे पहले मीनू आपसे समझना चाहूंगी, ब्लिस क्लब को शुरू करने के पीछे थॉट क्या था? क्या जरूरत आपको दिखी? क्योंकि एक बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत सारे जाने माने ब्रांड्स वैसे भी एस्टैब्लिश्ड हैं, सो व्हाई स्टार्ट अ न्यू ब्रांड? Hi, thank you for having me here. And it's a great question, something that I've been asked quite a bit. And I think it stems from the fact that actually Bliss Club before the pandemic was when I decided to start Bliss Club. And I was very, very excited by the size of opportunity even back then. And this is, late 2019. When I would look at, brands globally, I would, buy my own activewear outside of India. And yahan just to get great quality activewear was a big, big struggle. And was very excited by the fact that there are, $50 billion, $100 billion companies in the activewear space globally. Whereas agar aap India mein dekhe, there's not a single, large brand that's been able to build specifically for the Indian market. And hence was very, very excited that this could be a very big space. And even before the pandemic, activewear was one of the fastest growing segments in apparel as well. So that was really the thought process that this is a very, very fast growing segment, coupled by the fact that women के लिए actually कोई नहीं बना रहा है इंडिया में, and women specifically have multiple problems when it comes to activewear, given how intimate the product is and how functional it needs to be as well. So marrying both women first issues plus the fact that this is a very fast growing segment, मैं बहुत excited थी इसमें start करने के लिए. पल्लवी, एचआरएक्स की शुरुआत 2013 में हुई थी एंड वी हैव सीन दैट ब्रांड ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के साथ टाई अप करके उसका स्केल भी बढ़ा है। लेकिन किस तरह की लर्निंग्स रही हैं इस पर्टिकुलर ब्रांड को बिल्ड करने में? और आपका ब्रांड फिर किस तरह के ऑडियंस को केटर करता है? क्या आप सीधे बड़े प्लेयर्स के साथ कम्पीट कर रहे हैं या फिर अपने आप के लिए एक नीश क्रिएट कर रहे हैं? Thank you for having me here. And a very pertinent question जो आपने पूछा है कि आप किससे compete कर रहे हैं और अपनी क्या जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो basically इस गेम में survive करने का एक तरीका ये था कि we had to carve a very strong positioning for ourselves. और जैसा कि मीनू ने बताया, I mean India was kind of deprived of its own homegrown fitness brand which could hear the Indians, which could understand the Indian body types, especially when it comes to women and even men. हम जिस तरह की fitness activities में we're kind of getting started, I must say, because pandemic has triggered a lot of reactions in people who were on the edge have started undertaking many things. Sports is gaining grounds. तो ये सारी चीजें बहुत बिगिनर लेवल पे है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं होती हैं। और इंडिया में उस वक्त जब हमने शुरू किया था तब कोई भी नहीं था जो इंडियंस को सुन सके, समझ सके या ये मार्केट क्रिएट कर सके। So I think our learning started off by making products and reinventing them and understanding, मतलब छोटी छोटी लर्निंग हुआ करती थी। जैसे अगर आप स्नग फिट बेचते हो वुमेन के लिए, फीडबैक जो हमें मिलता था that women are not very comfortable wearing it in the same gym जहाँ पे वो साथ में men women वर्कआउट कर रहे हैं, uncomfortable फील कर रही हैं, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पसंद आ रहे उनको, लंबी टी शर्ट्स चाहिए, स्वेट वाइकिंग चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी नहीं बढ़े अगर women runners हैं। तो ये सारी चीजें वो holding women back also from participating in fitness activities. जब हमने फीडबैक लेना शुरू किया, हमने प्रोडक्ट इवॉल्व करना शुरू किया, of course the market started expanding, people became more receptive, acceptability went up. और आज आप जैसे देख रहे हो, हम एक फिटनेस ब्रांड है, हम सिर्फ एक्टिववेयर ब्रांड नहीं रह गए हैं। मतलब आवर एक्सपेंस इज अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। इफ आई हैव टू नेम द क्लोजेस्ट कंपटीशन, आई वुड से द इक्विवेलेंट फॉर अस इज डिकैथलॉन, जहाँ पे आप एक स्टोर में घुसो और आपको हर चीज मिल जाती है आपकी जरूरत की, राइट फ्रॉम स्पोर्टिंग गुड्स टू क्लोथ्स, जूते, सॉक्स, मैट्स। सो हम अब उस स्पेस में जा चुके हैं जहाँ पे अक्रॉस मल्टीपल चैनल पार्टनर्स रेंजिंग फ्रॉम मिंत्रा, फ्लिपकार्ट। चिराग, आपने इनफैक्ट ब्लिस क्लब में इन्वेस्ट किया, एक सीड फंड के तौर पर आपने निवेश किया है। कितना पोटेंशियल है दरअसल इस मार्केट में ग्रोथ का? क्योंकि हमने देखा है ग्लोबली कई सारे बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं।
तो क्या इन छोटी कंपनियों के लिए जगह है उतना स्केल अचीव करने की? फर्स्टली थैंक यू सो मच हर्षदा, मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। आई थिंक ब्लिस क्लब के साथ एज यू इन्वेस्टेड, हम लोगों ने सीड स्टेज पे इन्वेस्ट किया था, एंड एज अ फंड हम लोगों की फिलॉसफी ये है कि हम लोग हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस काफी बॉटम अप तरीके से लेते हैं। सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज, हम लोग मीनू से मिले, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से देख रही हैं, किस टाइप की कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं, एंड उस सब चीजों पे जब हम एक्साइट हुए तब हमने मार्केट पे और काम करना स्टार्ट किया। तो इस टाइप की जो कैटेगरीज हैं वहां पे, बिकॉज लोगों के पास आज ऑलरेडी इंटरनेट है, काफी क्लियर राइट टू विन है फॉर द न्यू एज स्टार्टअप्स इन दिस स्पेस, बिकॉज जैसे जैसे लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी, वो कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड अफिनिटी नहीं है उनकी ऑफलाइन प्लेयर्स के साथ, या जो कंपनीज 15-20 साल से एग्जिस्ट कर रही हैं। सारी सर्चेस ऑनलाइन स्टार्ट होती हैं, एंड जब वो वहां पे इन प्रोडक्ट्स को डिस्कवर करेंगे तो कंपनीज लाइक ब्लिस क्लब विल पॉप अप देयर, एंड इफ दे आर एबल टू कम्युनिकेट एंड कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट क्यों बेटर है, तो ये बहुत ही लंबी और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड इन तरह की स्पेसेस में एक्चुअली हमारी स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि नई कंपनीज सबसे ज्यादा मार्केट शेयर लेंगी। ये बताइए, ये D2C का जो चलन है मीनू, हाउ इम्पोर्टेंट हैज इट बीन? आपने इस चैनल में कितना इन्वेस्ट किया और क्या यही ड्राइविंग फोर्स रहा है आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए, डायरेक्ट टू कंज्यूमर? Yeah, I think we are firstly 100% D2C. We sell directly to our customers, and I think it's a very, very powerful proposition, right? And if you see Bliss Club and the journey of Bliss Club, we've been the fastest growing brand in India in the last 12 months. Our journey from 0 to 100 crores happened in less than 18 months. And I think that talks about the power of the channel of selling direct to consumer. I think for us, investing in really building a very strong connect with the consumer, so not working through anyone, but being able to have a direct conversation with our customers, who we call Bliss Queens, being able to tell them why our product is 10x better than what you see in the market, right? And अगर आप एक्टिव वेयर को देखो, इट इज अ वेरी टेक्निकल कैटेगरी, इट्स नॉट अ डिजाइन फर्स्ट कैटेगरी, इसमें फंक्शन कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो आई थिंक D2C इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड आई थिंक द सेकंड पार्ट ऑफ दिस इज ऑल्सो द इकोसिस्टम। अभी D2C में अगर आप देखो, देयर आर सो मेनी एनेबलर्स इन द इकोसिस्टम। यू हैव पीपल हु कैन सपोर्ट यू विद लॉजिस्टिक्स, पिकिंग, पैकिंग, वेयरहाउसिंग. And I think that is very strong. And the fact that this ecosystem has built around, for younger brands and challenger brands to come up, I think is very powerful. इस चर्चा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए और देखते रहिए।